Now we are starting the next chapter, which is induction motor characteristic. Unit number 6, 7, 8 is for the induction motor drive. Unit number 6 is induction motor characteristic. Unit number 7 is scalar control of constant VYF control of induction motor, and unit number 6 is control of slip in induction motor. Up to the unit number 5, this is the portion of DC motor drive, while as per the syllabus, unit number 6, 7, 8 are for the induction motor drive. The first topic of unit number 6 is the review of induction motor equivalent circuit and torque speed characteristics. So we have to revise the induction motor basic equation and basic information of the induction motor, its equivalent circuit, and the speed torque characteristics. You know that you have already studied in the machine subject that AC motors are of two types. One is the induction motor, another one is the synchronous. And we are dealing with the three-phase induction motor drive. Three-phase induction motor drive of two types, squirrel cage and wound rotor. दो तरह की induction motor होती है, एक squirrel cage, एक wound rotor motor. In squirrel cage rotor consists of longitudinal conductor bar shorted by the circular connector at the two ends. While in the wound rotor motor, the rotor also has a balanced three-phase distribution winding having some poles as a stator winding. हम जानते हैं, we know that the rotor winding of induction motor is shorted either by the end rings or by the distributed winding. These are the shorted winding. दो तरह की हमारा जो है रोटर होता है, एक स्क्वायल केज रोटर, एक वाउंड रोटर. स्क्वायल केज रोटर में क्या होता है कि आपके लॉन्गिट्यूडनल कंडक्टर्स बार होते हैं जिसके एंड पे वो एंड रिंग से शॉर्टेड होते हैं, जबकि आपकी जो वाउंड रोटर मोटर है उसमें भी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है. एज जैसे आपके स्टेटर में होती है, सेम रोटर पर भी थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है. तो अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द मशीन सब्जेक्ट. जो हमने मशीन सब्जेक्ट में मशीन के सब्जेक्ट में पढ़ा है, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द इंडक्शन मोटर ड्राइव, जिसमें क्या होता है, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज V. मोटर है तो हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलता है. तो जो इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, वहां पर जो स्टेटर की जहां बात करें, स्टेटर हम जो इनपुट दे रहे हैं, थ्री फेज जो एसी सप्लाई हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इट इज वोल्टेज V एंड गिवन टू द स्टेटर इट इज करंट IS. V एंड IS. स्टेटर का जो रेजिस्टेंस है, इट इज RS, डिनोटेड बाय द RS. एंड जो इम्पिडेंस है और रिएक्टेंस जिसको कह रहे हैं, इट इज XS. RS and XS is the parameter for the stator winding. XM is the mutual inductance or a gap reactance. Then XR dash and RR dash. RR dash and XR dash are the stator deferred value of the rotor resistance RR and rotor reactance XR. रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो RR है और रोटर का जो रिएक्टेंस है वो XR है. अगर सो हमने रेफर टू द स्टेटर साइड करें, रेफर टू द स्टेटर साइड माने, देन इट इज XR डैश एंड RR डैश अपॉन S, वेयर S इज द स्लिप. और स्लिप क्या होती है? स्लिप इज डिफाइंड एज द ओमेगा ms माइनस ओमेगा m अपॉन ओमेगा ms. मीन सिंक्रोनस स्पीड विच इज 120 f अपॉन p, सिंक्रोनस स्पीड माइनस actual speed of the motor omega m, motor speed upon omega ms. Omega ms is the 120 f upon p, where f and p are the frequency, supply frequency and number of poles. So this is the equivalent circuit of the induction motor drive. Further, we can simplify this equivalent circuit by some modification or some after some modification. So stator impedance drop is generally negligible compared to the terminal voltage V. जो हमारा प्रीवियस इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर हम इसमें स्टेटर के इम्पीडेंस को नेग्लेक्ट माने
और नेग्लेक्ट करके अगर हम इसके दोबारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, देन दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर ड्राइव, where V is the input voltage, stator voltage, Xm is the mutual inductance and mutual impedance, reactance, Rs and Xs जो है वो आपके स्टेटर साइड के इम्पिडेंस आर डैश एंड आर डैश अपॉन एस, वो आपके रोटर साइड के आपके जो है इम्पिडेंसेस हैं। दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। आगे जो कैलकुलेशंस है इट इज बेस्ड ऑन दिस सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। फर्स्ट जो हमने इक्वेशन पढ़ी स्लिप की, जहां हमने स्लिप को डिफाइन किया है एस इज इक्वल टू द ओमेगा एम एम एस माइनस ओमेगा एम अपॉन ओमेगा एम एस। यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम ओमेगा एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, या ओमेगा एम को अगर ओमेगा एम को ओमेगा एम एस और स्लिप की फॉर्म में लिखें, देन ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एम एस इंटू 1 माइनस एस। तो इक्वेशन नंबर 2 इज डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। देन द रोटर करंट, अगर हम रोटर करंट की बात करें, आई आर डैश की बात करें, अगर इस सर्किट में, इस इक्विवेलेंट सर्किट में हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आई आर डैश इज इक्वल टू वी इज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस एक्सएम, बिकॉज वी हैव मॉडिफाइड द इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज वी मानते हैं, देन द टोटल इम्पिडेंसेस ऑफ होल द सर्किट इज आर एस प्लस आर आर डैश अपॉन एस प्लस जे एक्सएस प्लस एक्स आर डैश। तो यहाँ पर अगर हम इसमें इस सर्किट में अगर करंट की वैल्यू की बात करें तो करंट की वैल्यू विल बिकम वी अपॉन आर एस प्लस आर आर डैश अपॉन एस प्लस जे एक्स प्लस एक्स आर डैश अपॉन एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देन नेक्स्ट इक्वेशन for the induction motor is power transferred to the rotor, power transferred to the rotor or air gap power. This is defined as Pg. Air gap power Pg is given as C IR dash square into RR dash upon S. C IR dash square into RR dash upon S. IR dash की वैल्यू हमें पता है, we can put the value of IR dash is also here. एयर गैप पावर, जहाँ एयर गैप पावर की बात करते हैं या आपके पावर ट्रांसफर टू द रोटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इम्पिडेंसेस है, जो ये अपने रेजिस्टेंस है, आर आर डैश अपॉन एस। और रोटर कॉपर लॉस की बात करते हैं, देन सी आई आर डैश स्क्वायर इंटू आर आर डैश कॉपर लॉस। और जहां हम बात करें अगर इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल पावर, देन इट इज गिवन एज पीजी माइनस पी कॉपर। तो तीन ये रिलेशन हमें याद रखने हैं कि पीजी इज द एयर गैप पावर, पी कॉपर इज द copper loss, and Pm is the mechanical power. Pm is the mechanical power whose value is Pg minus P copper. Pg की वैल्यू जो है वो 3 IR डैश इंटू आर आर डैश अपॉन एस है, और P कॉपर की वैल्यू 3 IR डैश इंटू आर आर डैश है। अगर हम यहाँ पर आप 3 IR डैश इंटू आर आर डैश को कॉमन लें, देन इट विल बिकम 1 माइनस एस अपॉन एस। तो इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 is the relation of power for the induction motor drive. Power transfer to the rotor air gap power, rotor copper loss or P copper, and third one is the mechanical power which is converted into the electrical power which is converted to the mechanical power, PM. Now after the relationship in the power, now we are coming for the torque, relation of the torque. The torque developed by the motor, we know that the torque is given as Pm upon omega m. Pm upon omega m, mechanical power divided by the speed. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें Pm की, तो Pm will become 3 IR dash square into RR dash 1 minus S upon S। और ओमेगा ms को अगर हम ओमेगा m को ओमेगा ms की फॉर्म में लिखें, तो ओमेगा m इज इक्वल टू 1 minus S into omega ms। 1 minus S will cancel the 1 minus S, and the relationship will become, torque will become 3 upon omega ms IR dash square into RR dash upon S. Further, we can put the value of IR dash square and take the magnitude of it, then this relationship will become 3 upon omega ms
RR dash upon S is as it is, and the value of IR dash square we can put V square upon RS plus RR dash upon S square plus XS plus XR dash whole square. So this is the relation of the torque. The next we have developed the torque value. Now if we want to find out the torque whose value is maximum, means we want to find the maximum torque. We want to find the maximum torque where at which slip, हमें वो स्लिप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो. हमारे पास ये रिलेशनशिप है, टॉर्क की जो हमारे पास वैल्यू है, टॉर्क इज T अपॉन ओमेगा एम एस वी आर स्क्वायर इंटू आर आर डैश अपॉन एस, आर एस प्लस आर आर डैश अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स आर डैश स्क्वायर. अगर हमें इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए विद रेफर टू द स्लिप, जिससे हमें स्लिप की वैल्यू हमारे उस स्लिप की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जहां पर ये टॉर्क मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम क्या करें, अगर हमें पता है डी टी अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो, अगर हम ये डिफ्रेंशिएशन करें और इसको इक्वलेंट टू जीरो करें, तो जो वैल्यू हमें स्लिप की मिलेगी वहां पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो मैक्सिमम टॉर्क एट स्लिप कैन बी फाइंड आउट बाय द डी टी अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो. अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे मैक्सिमम स्लिप जहां पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है उससे डिनोट किया एस एम से, वो अगर हम फाइंड आउट करते हैं देन इट विल बिकम आर आर डैश प्लस आर एस स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स आर डैश का होल स्क्वायर. और इस स्लिप को पुट करने के बाद अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें देन टॉर्क मैक्सिमम इज गिवन अप एज 3 अपॉन 2 ओमेगा एम एस. अगर हम ये प्रीवियस जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम एस की जगह, जहाँ स्लिप आ रही है इसकी जगह एस एम की वैल्यू पुट करें, तो जो मैक्सिमम टॉर्क आता है, दिस मैक्सिमम टॉर्क इज गिवन एज 3 अपॉन 2 ओमेगा एम एस वी स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस माइनस आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स आर डैश का होल स्क्वायर. तो ये जो है इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टॉर्क, और इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेकडाउन टॉर्क. तो ये यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से जो इक्वेशन नंबर 11 तक अपन ने डेवलप करी, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर ड्राइव. जैसे हमने डीसी मशीन में की थी, सिमिलरली ये हमने इंडक्शन मोटर के लिए डेवलप करी. बात करें अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, अगर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक हम डेवलप करें, तो जो हमने टॉर्क का रिलेशनशिप पढ़ा है, इस टॉर्क के रिलेशनशिप को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो हमें ये पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एट ए सिंक्रोनस स्पीड. अगर हमने यहाँ जो रेफरेंस लिया है, ये टॉर्क रेफरेंस लिया है, टॉर्क एक्सिस लिया है, ये ओमेगा स्पीड का एक्सिस लिया है. अगर हम ओमेगा एम एस से स्टार्ट करते हैं तो ओमेगा एम एस पर आपके टॉर्क की वैल्यू जीरो है, स्पीड की वैल्यू जीरो है, करंट की वैल्यू जीरो है. तो ये इस पॉइंट पर आपके टॉर्क और करंट दोनों जीरो हैं. विद डिक्रीज इन स्पीड, जैसे जैसे आप स्पीड को डिक्रीज करेंगे टॉर्क रिड्यूसेस. जैसे जैसे आप अगर जैसे जैसे आप यहाँ पर टॉर्क इसको डिक्रीज करेंगे तो आपके स्पीड डिक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे आप डिक्रीज इन स्पीड को आप डिक्रीज करते जाओ, आप टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. कब तक, अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पर आपके मैक्सिमम टॉर्क, जिसको हम ब्रेकडाउन टॉर्क भी बोल रहे हैं, तो उस पॉइंट तक आपके जो है टॉर्क डिक्रीज होगा. और उसके बाद आपके जो टॉर्क है वो इंक्रीज बाय टॉर्क रिड्यूस आफ्टर द ब्रेकडाउन वैल्यू. आपके जो टॉर्क की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी ब्रेकडाउन के बाद. ये आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी भी है, ये इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इंडक्शन मोटर की. पर आपने इसको जो एक्सिस लिए होंगे वो टॉर्क का एक्सिस आपने वाई एक्सिस पे लिया होगा और स्पीड का एक्स एक्सिस पे लिया होगा. तो ये आपकी जो
करेक्टरिस्टिक है, ये है आपकी करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडक्शन मोटर, स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक एंड स्पीड करंट करेक्टरिस्टिक।